University to give us an opportunity to come here and talk to you. We have been going, in fact, personally, we have been going to many universities across the country to tell the students how they can lead this country and what is that they can do. Of course, this is one of them. Now, I'm personally been involved in it. I was, for 22 years, I was spent as a professor in IIT and IIM. Almost 22 years. I was the Dean of IIM Indore when I joined Jaipuriya Group as a director. 5 years I was the director of Jaipuriya Group. In fact, 2 years in Delhi and 3 years in Lucknow. I don't know whether you know or not. There is a Jaipuriya Institute of Management in Lucknow. I was the director for 3 years almost there. And then I joined IIM Lucknow as an adjunct professor. At the age of 56, I decided to quit the government job. I took retirement, voluntary retirement from central government. And then, along with some of my friends who are IAS officers, who are ex-officers like Aftab Sahab, we have started this Maxwell India in November 2018. Because up to March 2018, I was the director of Jaipuriya Air Force. Then I went to Singapore, and then once I came from there, we started it. And we technically established this organization in 2018 in Lucknow, where we have very important members. We have organizations like Integral University is a member of it. Its Chancellor, Vice Chancellor, in fact the Chancellor is a member of it. I will also include this university as a member. We have Shalimar Group as a member. We have about 6-7 IAS and other officers as a member. We have professors from IIM and IIT as members. Now, you know, it's very difficult in this country to see the kind of change that are going on. India is one country, it's a very unequal country. You know, 1% of Indians possess about 55% of India's wealth. 8% हिंदुस्तानियों के पास पूरे हिंदुस्तान की 55% का जो wealth है, वो है. It's very, very shocking कि 1% लोग, और ये अगर बढ़ेगा तो हो सकता है सारा हिंदुस्तान उन्हीं 1%, 2% लोगों का हो जाएगा. This is a very dangerous trend that the poor are getting poorer, the rich are getting richer, and this unequal gap is increasing. It will increase violence. French Revolution start हुआ था सिर्फ एक स्टेटमेंट से. जब भूखे लोग रानी के पास गए और उन्होंने ये कहा कि हमें रोटी नहीं है खाने के लिए, and the insensitive princess said, why don't you try cake when you don't have bread? And they became so angry because they thought that the Rani, the princess, is thinking that we want options. We have no bread, means we have no bread, we have nothing. And she was thinking they want a kind of option. And it started with killing of people, and the blood revolution in France started. I don't know whether it will happen in India or not. लेकिन अगर 1% लोग 70%, 80% जो ज़मीन है, जो wealth है, उस पर पोजीशन करेंगे, और बाकी जो 99% हिंदुस्तानी है, उनको अगर 10% और 5% wealth का होगा, इस unequal wealth को, the reason is because there is hardly any attempt to actually make this gap lower. So we thought of doing something, most of us who are there in this, through education. The only thing that can reduce this gap is education, nothing else. Nothing can reduce this gap. If you are educated, properly educated, you can reduce this gap. If you become an IAS officer, if you become an IPS officer, if you join Indian Railways, if you join industry, if you start your own company, the only way is through education. There is no other way. Now, lot of people, I've seen them doing PhDs. You know, thousands of PhDs have applied for the job of a peon in Uttar Pradesh. This is really shocking. 3000 PhDs ने peon की नौकरी के लिए अप्लाई किया है. अभी हम जब जयपुर में डायरेक्टर थे तो मैंने वैकेंसी निकाली. एक दिन में 1300 एप्लीकेशन आया 3 वैकेंसीज के लिए. 1300 applications.
and most of them were really very qualified. So what does it mean? Either ये qualification का कोई मतलब नहीं है, आपने डिग्रियां ले ली उनका कोई मतलब नहीं है. Why? I have spent most of the time in IIM and IIT where a student gets very huge salaries. हर बच्चे को जो मिनिमम सैलरी IIM इंदौर में जब मैं डीन था 20 लाख रुपए एवरेज सैलरी मिलती थी, हर बच्चे को कम से कम 3 ऑफर मिलता था. Well, there are students like that, but then of course IIMs and IITs are very good institutions. What about the rest of the universities in India? Why does this the PhD करने के बाद हमें चपरासी की नौकरी नहीं मिलती है और उसके लिए हम अप्लाई करते हैं? क्या रीजन है? Now we are going to help people in that through training. अब हम लोगों ने सबसे पहले जो ग्रेजुएट्स हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने रिक्वेस्ट पे वसीम अख्तर साहब जो चांसलर हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, I have joined them as principal advisor. I am advising them on how they have 12,000 students, how the students can really get jobs, how in fact they can become employable. So employable कैसे हो सकते हैं? डिग्रियां तो ले ली आपने, जितने सारे लोग हैं सब डिग्रियों के साथ हैं. 40% से 50% IAS ऑफिसर बनते हैं, they are only graduates, there are no PhDs there. Now what is the difference? The difference is very simple and very straight. I know it because I have been with education all through my career for the last 30 years. The difference is your knowledge. The difference is the skill that you have. If you have the knowledge and the skill, you can do anything in India. India is a growing country and you have a lot of scope in the country. If you have only degrees, there is no scope. You will get nothing. मेरे स्टूडेंट्स हिंदुस्तान में बहुत हैं. एक स्टूडेंट का आई एम वेरी प्राउड बिकॉज वो स्टूडेंट जो है वो 2 लाख करोड़ का बिजनेस डील करता है. दैट स्टूडेंट इज दिलीप सांघवी, द चेयरमैन ऑफ सन फार्मा. ही सिंपली अ ग्रेजुएट. यू नो, जब मैंने दिलीप को पढ़ा रहा था लीडरशिप प्रोग्राम में तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये बिजनेस कब शुरू किया? उन्होंने कहा दिलीप साहब मैंने शुरू किया 1982 में सिर्फ 10,000 रुपए से. 10,000 रुपए से आज वो बंदा हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है. 2 लाख करोड़ का बिजनेस करता है. क्यों? मे बी बिकॉज ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स जो डिग्रियों से नहीं आती. तो हम यहाँ पे मैक्सिल इंडिया में क्या करेंगे? वी वुड लाइक टू गिव यू दैट नॉलेज एंड दैट स्किल बिकॉज वी विल नॉट गिव यू डिग्री. मतलब डिग्री बिकॉज हम लोग इतने सारे लोग थे, वी कुड हैव स्टार्टेड यूनिवर्सिटी, अ कॉलेज. समबडी टोल्ड मी रिजी साहब व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ यूनिवर्सिटी. मेरे एक दोस्त हैं महमूद मेवार, उनके पास 100 एकड़ जमीन है. तो उन्होंने कहा रिजी साहब आप IIM से रिटायरमेंट ले रहे हो, आप यूनिवर्सिटी को हम आपको दे रहे हैं 10 एकड़ जमीन फ्री, आप यूनिवर्सिटी कीजिए. मैंने कहा क्या फायदा होगा? इतनी सारी यूनिवर्सिटीज तो इंडिया में है. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन विल मेक? दिस विल बी अनदर यूनिवर्सिटी जिसको वायबल करने के लिए हमें सिर्फ बच्चों को डिग्रियां देना, प्रोसेस में चलना. दैट्स ऑल वी विल डू. व्हाट एल्स वी विल डू? सो विल नॉट डू दैट. आई डिडंट एक्सेप्ट इट बिकॉज़ इट्स नॉट रियली यूजफुल. हिंदुस्तान को दूसरी यूनिवर्सिटीज, दूसरे कॉलेजेस नहीं चाहिए. जो कॉलेजेस चल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, उनको ही दुरुस्त करना. दैट इज व्हाट इज नीडेड. नाउ द एजुकेशन दैट यू हैव गॉट, विल इट गिव यू अ जॉब? माय आंसर इज नो, इट विल नॉट. अब जैसे हम लोग अभी फर्स्ट यहाँ पे आए हैं, मैंने चांसलर साहब से बात की थी कि हिंदुस्तान में अभी यूपीएससी ने एक वैकेंसी निकाली. वो वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट. जो आफ्ताब साहब हैं, इन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन किया था एंड रिटायर्ड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF. और एग्जाम में क्या है? सिर्फ 2 पेपर्स हैं. पहला पेपर है जनरल नॉलेज 250 नंबर का. आपको 125 क्वेश्चन मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस, 2 घंटे का वक्त मिलता है, आपको जस्ट टिक करना है. आपने अगर राइट आंसर टिक किए, यू आर शॉर्टलिस्टेड. दूसरा पेपर है जिसमें आपको लिखना है इंग्लिश में, ऑफ कोर्स. ये 450 नंबर का आपने एग्जाम दिया, सेलेक्ट हुए, आपको उसके बाद फिजिकल देना है. इसमें फिजिकल इंपॉर्टेंट है कि भाई आप फिजिकली फिट हो. चश्मा वालों को नहीं लेते. तो वो देखते हैं कि भाई CRPF में आपको जाना है एज एन ऑफिसर, आपको जाना है BSF में एज एन ऑफिसर, आपको CISF में एज एन ऑफिसर. तो उन्होंने अपना एक फिजिकल स्टैंडर्ड बनाया. लेकिन हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं. अभी हमने पूरे हिंदुस्तान में सारी यूनिवर्सिटीज को भेजा. 2 बच्चे ने ज्वाइन किया.
सिर्फ 2 बच्चे हैं। एक बच्चा आया पुणे से, उसका नाम है सतुमित पेथा, वो नागालैंड का है। 10 तारीख से 17 को प्रोग्राम शुरू होना, 10 से हमारे पास मौजूद है। सर हमें पढ़ाइए, उसमें मैंने पैशन देखा, वो कर सकता है। दूसरा बच्चा आया, वो आया पंजाब से, सुमित सिंह, पंजाब से आया, 8 तारीख को आ गया कि सर आपका मिला, मुझे यूनिवर्सिटी ने बताया है, मैं सर आया हूँ पढ़ने के लिए, हमें पढ़ाइए। एथलीट है। 2 ही बच्चे आए, जबकि मैंने हिंदुस्तान की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जिसके वाइस चांसलर को नहीं लिखा। वाइस चांसलर ने सुना होगा, किनारे फेंक दिया होगा, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं है मीटिंग से, उनको फुर्सत नहीं है अपने दिखावे से, उनको फुर्सत नहीं है टाइम बर्बाद करने, उनको ये फुर्सत नहीं है कि एक सीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को सीरियसली ट्रेन करना चाह रहा, हम टाइम दें। चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, चाहे जामिया मिलिया के वाइस चांसलर हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, they don't have time. They have the time to please the organization leaders and to waste their time. Most of them are doing this, and that's why I feel that the education is missing. Degrees are there. So अगर आप CMPF में बनना चाहते हैं, हम लोगों ने निकाला IAS के लिए 1200 बच्चों ने अप्लाई किया। 1200 बच्चों में करीब 410 ने IAS में इंटरेस्ट दिखाया। हमने सिर्फ 18 बच्चों को सेलेक्ट किया। क्योंकि IAS बनने के लिए आपके पास 2 क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 1, आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि 1750 नंबर का राइटिंग होता है। वो ऐसे पेपर देते हैं 250 नंबर का, 3 घंटे में आपको सिर्फ 2 ऐसे लिखना है, और बड़ा सिंपल सा टॉपिक देंगे, आज के दिन गांधी जी। अब आप 1.5 घंटा उस पर लिखिए, और मार्क्स है 250 ना। अगर आपको लिखना नहीं आएगा तो IAS आप बन ही नहीं सकते। 90% स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज में लिखना नहीं आता है, मैं ये अपने तजुर्बे से कहता हूँ। हमारे IIT में बच्चे लिखना जानते हैं, IIM में जानते हैं, इसलिए उनकी वक़्त होती है। भले हम सिलेक्ट करते हैं बहुत सारे बच्चों को, लेकिन बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। जब मैं यहाँ आ रहा था, इतनी अच्छी बिल्डिंग इस यूनिवर्सिटी की, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ से तो कितने बच्चे हर चीज में निकल सकते हैं। हर साल एक दिलीप सांघवी निकल सकता है जो 2 लाख करोड़ की कंपनी बना सकता है, हर साल IAS ऑफिसर्स निकल सकते हैं, हर साल IPS निकल सकते हैं, आर्मी में निकल सकते हैं, हर जगह से निकल सकते हैं। क्या कमी है इस यूनिवर्सिटी में? हर साल निकल सकते हैं बच्चे, लेकिन कैसे निकले? भाई दिलीप सांघवी निकलने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन जज्बा चाहिए, जोश चाहिए। आपको वो तालीम चाहिए जो वही बता रही है जो चाहिए दुनिया को। नीडेड एजुकेशन, वो टैलेंट जो आपको चाहिए, और बिल्कुल फिक्स्ड है। हर एग्जाम में हिंदुस्तान में 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीजिए जॉब का, आपसे अंग्रेजी का एक जरूर रहेगा क्वेश्चन। अब बैंक में अफसर बनना चाहते हैं, RBI में अफसर बनना चाहते हैं, इंडिया में भी अफसर बनना चाहते हैं, IAS में भी अंग्रेजी का एक पेपर रहेगा, एक मैथ होगा, एक रीजनिंग होगा, एक जनरल नॉलेज होगा। आपके सब्जेक्ट जो आपने पढ़े वो नहीं होंगे, फिजिक्स नहीं होगा, केमिस्ट्री नहीं होगा, साइकोलॉजी नहीं होगा, जनरल नॉलेज चाहिए आपको। तो हम लोगों ने किया है कि हर कंपटीशन जो हिंदुस्तान में होते हैं, हम उनकी तैयारी बच्चों को कराएंगे। हाँ, तैयारी कराने से पहले हम सिलेक्शन जरूर करते हैं। जैसे आज मैं जब आफ्ताब साहब से बात कर रहा था, उनका रिजल्ट हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 फिजिकल टेस्ट होते हैं असिस्टेंट कमांडेंट में। वो 100 मीटर की दौड़ आपको 16 सेकंड में पूरा करना है। अगर आपने पूरा नहीं किया, भले आप रिटर्न में कितना भी नंबर ले आए, 100 में 100, आपका नहीं होगा। मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था, जब वो गया कमांड डिफेंस सर्विसेज में, तो उस जमाने में ऑब्स्टेकल कराते थे। ऑब्स्टेकल कहते हैं बीच बीच में कर देते हैं, आप जंप करके पास करते हैं। 60 ऑब्स्टेकल्स करा देते। 40 वालों का भी सिलेक्शन हो गया, जिनके 42 थे। इसने 60 में 60 किया, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये राजपूत था उस वाला, इसने जाके कमांडर जो था उससे पूछा कि सर मैंने 60 में 60 ऑब्स्टेकल्स किए और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 40 वालों का आपने कर दिया, ये तो बेईमानी है, क्योंकि मैं बिहार से आया हूं। तो उसके कमांडर ने कहा, वी वांट ह्यूमन बीइंग्स नॉट मंकीज। उनको बंदर नहीं चाहिए, इंसान चाहिए। ये 60 में 60 तो बंदर भी कर लेगा। तुम बाकी चीज में फेल कर गए, साइकोलॉजिकल टेस्ट था उसमें फेल किया होगा, इंग्लिश का टेस्ट होगा उसमें फेल किया होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें फेल किया होगा। अब पूरे हिंदुस्तान में आर्मी एक एग्जाम लेती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज साल में 2 बार लेती है। कितने एड्स आते हैं, कितने बच्चे यहाँ के आप लोग भरते हैं फॉर्म्स का? आपको भरना चाहिए। हिंदुस्तान की आर्मी एक बहुत अच्छा जॉब देती है,
इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी। हम लोगों ने फैसला किया, हमने अभी उसमें सिर्फ 50 एप्लीकेशन हमारे पास आए, हम कर नहीं पाए उसको, क्योंकि 50 में हम किसी को सिलेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि उस पर एग्जाम बहुत सिंपल है, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, दैट्स ऑल। नाउ हम इसी की ट्रेनिंग कराते हैं, हम वो ट्रेनिंग कराते हैं जिससे आप कंपटीशन में compete करें, वो ट्रेनिंग कराते हैं जिसमें आप, हम लोगों ने इसका मॉडल बनाया कि फीस नहीं लेंगे, हम डोनेशन लेंगे। तो हमने बहुत सारे लोगों से बात की, तैयार हैं लोग डोनेशन देने के लिए, डोनेशन से हम उसको पैकअप कर रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं मिल रहे हैं। दैट इज अ सरप्राइजिंग थिंग कि आप फ्री हैं, बच्चे पैसे लेके पढ़ रहे हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, दे आर चार्जिंग lakhs of rupees and students are going there। हमारे दोस्त है खान साहब जो दे IAS चलाते हैं, उनके पास 10,000 स्टूडेंट हैं, फीस लेते हैं 1.5 लाख रुपया, 150 करोड़ साल का उनका रेवेन्यू है, बट दे आर गेटिंग स्टूडेंट्स। लेकिन जो मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ये है कि हम लोगों ने अभी सिर्फ शुरू किया नवंबर में, तो बहुत कम टाइम है। हम ये चाहेंगे कि उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी में हर शोबे में बच्चे आगे बढ़े। कुछ बच्चे वो भी रहे जो आर्मी के एग्जाम में इंटरेस्टेड हो, कुछ वो जो IAS का इम्तिहान देना चाहते हैं, कुछ वो जो SSC देना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितनी सबऑर्डिनेट सर्विसेज है SSC से होती है, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स है, इंस्पेक्टर कस्टम्स है, एक्साइज है, सारे के सारे इसी ट्रेनिंग SSC एग्जाम से होती है। बहुत बड़ा एग्जाम होता है SSC का ना। कॉम्पिटिशन में अगर आपको जॉब नहीं मिल सकती, आप ये सोचेंगे कि हम अप्लाई करेंगे और जॉब मिलेगी, बहुत कम नौकरियां हैं। एवं यूनिवर्सिटीज में भी जाने के लिए आपको NET नेट करना पड़ेगा UGC का, तब आप इंटरव्यू दे सकते हैं लेक्चरशिप के लिए, एंड देन यू कैन बी सिलेक्टेड। सो यू कांट गेट अ जॉब विदाउट फेसिंग ए कंपटीशन, बिकॉज जो जॉब आपको चाहिए, एक जॉब है 500 लोग हैं, जब तक कंपटीशन नहीं होगा उसमें बेस्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आना चाहिए। नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आना, ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी कैन डू इट, बट यूनिवर्सिटी इज नॉट सपोज्ड टू गिव यू दैट। यूनिवर्सिटी आप में जोश नहीं भर सकती, यूनिवर्सिटी आप में कमिटमेंट नहीं दे सकती है, इन्वेस्टमेंट आपके अंदर वो जो हार्ड वर्क का जज्बा है वो नहीं दे सकती है। यूनिवर्सिटी आपको पढ़ा सकती है क्लास में, ऑफ कोर्स अच्छे टीचर्स के साथ, लेकिन यूनिवर्सिटी वो नहीं दे सकती जो आप अपने आप पैदा करें। आप में जोश नहीं है, आप 25 बरस में ऐसे लग रहे हैं जैसे 80 बरस के हो गए, तो कहां से कुछ कर पाएंगे आप। मैं बच्चों को देखता हूं, जब मैंने IIM छोड़ा तो मुझे फर्क पड़ा कि भाई बच्चों में फर्क क्या होता है। क्योंकि IIM में बच्चों को मैं देखता था फुल ऑफ एनर्जी, भाई 4 बजे सुबह को भी IIM इंदौर में बच्चे घूमते रहते थे, लेकिन 9 बजे जब क्लास होता था तो 9:01 में कोई नहीं आ सकता, गेट हम बंद कर देते। Nobody can come even 1 minute late. 1 minute late means late. एंड अगर बच्चा रात भर जागा है तो भी 9 बजे आके क्लास करता था, क्योंकि अगर उसका अटेंडेंस नहीं पूरा हुआ तो वो IIM के कंपटीशन करके आया है। बहुत सारे बच्चे IIT के आए हैं, हमें उन्हें निकाल दें, so they were afraid। तो ये डिसिप्लिन अपने आप क्रिएट होगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से एक डिग्री लेके चले जाएं और करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरह आप नौकरी के लिए धक्के खाएं। दैट्स ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, आप अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा करें कि यहाँ से निकलने से पहले आपके हाथ में 3-4 जॉब्स हों, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉसिबल है, उसमें कोई ये नहीं, और हम लोग उसकी पूरी मदद करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आज के इसमें कि आप में से कितने हैं जो ग्रेजुएट हैं और 25 साल से जिनकी उम्र कम है। कैन यू स्टैंड अप ऑल दोज जिनकी उम्र 25 से कम है और ग्रेजुएशन कर चुके हैं। खड़े हो जाइए, थोड़ा जरा सी तकलीफ होगी। 25 से कम है, माशाल्लाह 25 से कम है और ग्रेजुएट हैं। मैं चाहूंगा आप में से हर एक अगर हेल्दी है, आप यहाँ आ सकते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए। रोजा के रखे हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोजे में मेहनत करना चाहिए। इधर आ जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट आपसे इधर आ जाए प्लीज। 25 से कम 1 अगस्त 2000 उनका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए अगस्त 1 1994 से पहले, 20 से 25 के बीच। प्लीज कम इधर थोड़ा सा एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग भी होगा। अब मैं आफ्ताब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आफ्ताब साहब थोड़ा सा इसमें देख लें कि
कौन होंगे आपके हिसाब से जो फिट हो जाएंगे, जिनको हम एलिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, सब फिट है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी वर्जिश जरूरी थी। प्लीज नाउ हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए हम लोग पढ़ाते कैसे हैं। अब जैसे असिस्टेंट कमांडेंट है, 17 मई से हम शुरू कर रहे हैं, तो ये 10 बजे सुबह से लेके 4 बजे तक हम ट्रेनिंग कराएंगे, क्लासरूम ट्रेनिंग, और हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन हम फिजिकल ट्रेनिंग करवाएंगे। तो जो 10 से लेके 4 तक है, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं जनरल नॉलेज और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट हम बच्चों को पढ़ाएंगे बहुत इंटेंसिवली। करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 10 से 4 का मतलब हो गया 6 घंटे। इसमें बीच में 1 घंटे का गैप होगा। 5 आवर्स की डेली ट्रेनिंग होगी, प्लस हम लोगों ने एक पोर्टल बनाया है। अगर आप फिजिकल नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, लेकिन ट्रेनिंग ऑफ रिटन नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके पास एंड्रॉइड फोन है या आपके पास मोबाइल है, तो हम आपको ऑनलाइन एनरोल करेंगे। ऑनलाइन एनरोल करने में आपकी सारी पढ़ाई ऑनलाइन होगी। या तो आप मोबाइल से कर सकते हैं ऐप से, या आप कर सकते हैं अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से। आपको ऑनलाइन भी हम लोगों ने बनाया है बहुत ही अच्छा पोर्टल, जो करीब 2 साल की मेहनत से अभी बना है, और उसमें हम आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट में, चूंकि फिजिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसमें आपको फिजिकली अटेंड करना विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप फिजिकली क्लास अटेंड नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जो 4 टेस्ट होते हैं फिजिकल, उनको पास करने में आपको परेशानी होगी। और कितना भी आप रिटर्न में कर लें, फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, फिजिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं, जबकि उनका रिटर्न बहुत ही अच्छा होता है। दूसरे एग्जाम्स हैं, चूंकि ये अपॉर्चुनिटी है और आप रमजान में आए हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का कि आप आए। इसमें इतनी गर्मी है, यू हैव कम, यू हैव स्पेंड योर टाइम। तो जो दूसरे एग्जाम हैं, आप में से जो 25 से ज्यादा हैं, 32 बरस तक आप IAS का एग्जाम दे सकते हैं। और कोई भी कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट है 6 बार IAS का एग्जाम दे सकता है। IAS का एग्जाम बहुत सिंपल है। पहले एक प्रिलिमिनरी होता है, आपको 2 पेपर, प्रिलिमिनरी आप पास कर गए, तो फिर आपको मेन एग्जाम होते हैं 1750 नंबर के, वो पास कर गए तो करीब आपको 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। फाइनल सिलेक्शन 1000 बच्चे हर साल सिलेक्ट होते हैं IAS में, जिसमें IAS, IPS, IRS पूरी सर्विसेज उसके अंदर होती हैं। उसके बाद SSC भी हम करा रहे हैं। हर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें थ्रू कंपटीशन जॉब हो सकती है, हम करा रहे हैं। आप वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए, super70.in। आप इस पे जाएंगे तो आपको डिटेल्स मिलेगा, www.super70.in, इसको नोट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन फ्री है, जैसा कि अभी बताया उन्होंने, फीस नहीं है। super70.in, इसमें आप जब रजिस्टर करेंगे, अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर कर लेना, और रजिस्टर में आएगा कि आपके कैरियर का गोल क्या है। तो उसमें कुछ तो एग्जाम दिए रहेंगे, जो नहीं दिए हुए आप मेंशन कीजिए। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप मेंशन कर लीजिए। आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं आप उसमें मेंशन कीजिए। आपको 72 आवर्स के अंदर कोई ना कोई काउंसलर फोन करेगा, किसी न किसी का फोन आएगा आपके पास, या आपको मेल आएगी, आपको बताया जाएगा कि मैम आपके लिए ये कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी कैन डू फॉर यू। कुछ एग्जाम्स हम सिस्टमेटिक कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्स में हम ऑनलाइन कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे साथ अभी ऑनलाइन जुड़े हैं, जो गोवा के हैं, जो दिल्ली के हैं, वो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। बच्चे कम हैं, लेकिन वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू द पीपल। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज सिंपली फिलिंग द गैप्स। जो आपकी एजुकेशन और जॉब मिलने तक जो गैप है, इस गैप को हम ट्रेनिंग से फिलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। काउंसलिंग भी करते हैं, गाइडेंस भी देते हैं। हमने एक सिस्टम मेंटर्स का चलाया। अगर आप IAS करना चाहते हैं तो आपको एक IAS ऑफिसर मेंटर करेगा। हमारे पास जितने हमारे मेंबर्स हैं वो आपसे बात कर सकते हैं कि भाई आप IAS करना चाहते हैं,
व्हाट इज दैट यू वांट टू डू, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कैसे अपनी वीकनेस को आप फिल इन करेंगे। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कैरियर आप चुनना चाहते हैं, आज के दिन में अगर आप ये फैसला करते हैं कि भाई मुझे ये जॉब लेनी है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उस जॉब को हासिल करने के लिए आपके अंदर कमी क्या है, आपके अंदर वीकनेस क्या है, क्या ऐसे गैप्स हैं जो आपको फिल करने पड़ेंगे। क्या कम्युनिकेशन आपका गैप है, क्या राइटिंग आपकी गैप है, क्या जनरल नॉलेज आपका गैप है, मैथमेटिकल नॉलेज आपका गैप है, रीजनिंग आपकी गैप है, क्या गैप है जो आप फिल इन करेंगे। ना अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आप में गैप्स क्या हैं, तो फिल करने का तरीका आपको अपने आप पता लगेगा और हम आपकी मदद करेंगे। भाई आपने कहा कि हम ये करना चाहते हैं, अगर आप प्रोफेसर भी बनना चाहते हैं हम आपकी मदद कर सकते हैं कि भाई NET नेट की तैयारी कैसे करें आप, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बट देन कुछ एग्जाम की हम बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करा रहे हैं, जैसे मैंने बताया असिस्टेंट कमांडेंट की, IAS की, SSC की। अगर आप IA में जाना चाहते हैं तो हम CAT की तैयारी भी करा रहे हैं। अगर आप सर्विसेज में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इसकी तैयारी भी हम करा रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हमने सुपर 70 में किया है कि हर सेक्शन में हम मैक्सिमम 70 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे और उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। नाउ विद दीज वर्ड्स I will welcome questions from you, then I will invite Aftab Sahab to give you a detail of particularly this assistant commandant, जिसमें अभी 10-12 बच्चों ने जो एलिजिबल हैं, जिनको बिल्कुल फॉर्म भरना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी नौकरी है। इसके बारे में आफ्ताब साहब बताएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप जो चाहते हैं मुमकिन है। याद रखिए, कुछ भी करना चाहते हैं आपके लिए मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप में सिर्फ फैसला होना चाहिए, उसको करने का कमिटमेंट होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, पैशन हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा, आज हमारे चूंकि 30 साल हमने पढ़ाया, मैंने उन बच्चों को भी देखा जो आज बड़े बड़े CEO हैं, तो बड़े शर्मीले से थे। जब आए थे बेचारे तो बहुत डरे हुए थे, कॉन्फिडेंस नहीं था उनके अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े बड़े पोजीशन पे चले गए। तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आपने फैसला कर लिया कि हमें ये हासिल करना है। IAS बनना है, बन सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, बन सकते हैं। इंडियन आर्मी में जाना है, जा सकते हैं। एयरफोर्स में जा सकते हैं। यू कैन अचीव एनीथिंग। अपनी कंपनी बनानी है, हम लोगों ने अभी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया है, जिसमें करीब हमारे पास अभी 70-80 बच्चों का एप्लीकेशन दिए। आप अपनी तालीम हासिल करने के बाद अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे, आपको फाइनेंस दिलवा सकते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे, आपको आइडियाज देंगे, आपको बताएंगे कैसे चलाइए बिजनेस। तो वी हैव जस्ट स्कोप फॉर एवरीथिंग एंड वी विल हेल्प यू। तो मैक्सेल इंडिया विल हेल्प यू इन ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट यू वांट टू डू। ऑफ कोर्स योर कमिटमेंट शुड बी सॉलिड, बिकॉज़ वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। हम में से जितने लोग जुड़े हुए हैं, 30-35 लोग ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में जुड़े हुए हैं, वो सब मीनिंगफुल एंड कमिटेड लोग हैं जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, एक प्रोसेस बनाना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वो लोग जिनका एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में जो गैप आ गया है, डिग्री और जॉब के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम फिल कर पाएं थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू काउंसलिंग, थ्रू गाइडेंस, थ्रू एडवाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। इट वाज ग्रेट टू बी विद यू। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आए और आपको असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में बताएं। सर, हमारी हजरात और अजीज़ तलबा, ये थे प्रोफेसर अशरफ रिजवी साहब। जो लोग किसी वजह से थोड़ा ताख़ीर से इस हाल में तशरीफ़ ला सकते हैं, उनको दोबारा ये बात